this is the special initiative on environment and ecology for civil services May 2017, and this is a post-mortem on insights, special issues on current affairs, and this is hit list topic number 35. So this is the topic marine protected area. We have 3 discussions. आपको पता होना चाहिए marine protected area एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यू है और इस पे हम 3 बातें करेंगे. पहला तो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, दूसरी बात हम इस पे एनालिसिस करेंगे और तीसरा फिर हम क्वेश्चन एंड आंसर पे जाएंगे. So let's start the topic. Now the question session. Now first question is Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources is headquartered. Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources is headquartered as which of the following countries? Australia, Switzerland, India, Finland. Second question, which country has become the first country in the world to ban deforestation? Third, Udaipur Declaration was for. Fourth, which of the following is or correct regarding the Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources? Ross Sea in Antarctica was declared as world's largest marine protected area to protect the Earth's most pristine marine ecosystem. Number 2, MPA status to Ross Sea will bring blanket ban on commercial fishing in about 3/4 of its area for 35 years. पहला है रोस सी अंटार्कटिका का सबसे बड़ा मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया है, डिक्लेयर किया गया है. और दूसरा जो एमपीए है रोस सी में क्या करेगा 35 इयर्स तक क्या करेगा उसके 3/4 भाग में कॉमर्शियल फिशिंग पर बैन लगा देगा. Which one is the latest declared marine protected area in India? इंडिया में कौन सा लेटेस्ट मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया है? एमपीए है, थाने क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी, वेस्ट सुंदरबन सेंचुरी, Gulf of Mannar Marine National Park and Sajna Khali Sanctuary. A question or recently no-take zones were in news. It is related to disaster management risk zone, a zone in marine protected area, a no-activity zone national park, a no-activity zone in a Ramsar site. Man and Biosphere is an IUCN program, UNESCO program, United Nations Program on Biosphere Reserve, World Bank's program. A question or which of the following is are correct regarding TANSAT satellite? China has launched TANSAT. It is a global carbon dioxide monitoring satellite to understand the effects of climate change. कौन कौन सा सही है? क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन के लिए बनाया गया है? क्या इसे चाइना ने लॉन्च किया है? Now let's start the Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources. इसको CCAMLR भी बोलते हैं. This comes under the Antarctic Treaty System. पॉइंट नंबर 1 आपको याद रखना है. दूसरा, इस कन्वेंशन को ओपन कब किया सिग्नेचर के लिए? 1980 में किया. एंड कमीशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक मैरीन लिविंग रिसोर्सेज हेडक्वार्टर्ड इन तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया में है ये. ठीक है ना. और ये फोर्स में कब आई? 1982 में. पॉइंट नंबर 1 ये अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम के तहत है. पॉइंट नंबर 2 ये फोर्स में 1982 में आई. पॉइंट नंबर 3 इसका जो हेडक्वार्टर है कमीशन का दैट इज ऑस्ट्रेलिया. द गोल इज टू प्रिजर्व मैरीन लाइफ एंड एनवायरमेंटल इंटीग्रिटी इन एंड नियर अंटार्कटिका के जो आसपास है वहां पे मैरीन लाइफ को और एनवायरमेंट की इंटीग्रिटी को प्रिजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है. नाउ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया रोस सी को डिक्लेयर किया गया है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया. नाउ द डील सील्ड बाय द कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक मैरीन लिविंग रिसोर्सेज. इस डील को किसने सील किया? इसने सील किया CCAMLR ने किया. ठीक है ना. इसके होबार्ट में जो ऑस्ट्रेलिया में इसकी एनुअल मीटिंग के तहत. तो द रोस सी इज वन ऑफ द लास्ट इंटैक्ट मैरीन इकोसिस्टम. लास्ट इंटैक्ट मैरीन इकोसिस्टम में से एक है. और MPA stated to Ross Sea will bring blanket ban. ये blanket ban पूरी तरीके से बैन इस पे लगाया जाए. किस चीज पे? कॉमर्शियल फिशिंग पे. कितने एरिया में? 3/4 में इसको बनाया जाए. कितने सालों तक? 35 सालों तक. ठीक है ना. पॉइंट नंबर 1 याद रखना.
इसे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैरीन बोला गया। दूसरा स्टील को किसकी मदद से बनाया गया, CCMLR की मदद से बनाया गया, ऑस्ट्रेलिया में बनाया गया। तीसरी बात है क्या है कि इस पे ब्लैंकेट बैन लगाया गया है 3/4 एरिया में 35 सालों तक। ठीक है, इतनी बातें तो कम से कम आपको याद रखनी ही है। नो टेक जोन्स, नो टेक जोन्स का मतलब क्या है, दीज आर एरियाज डेजिग्नेटेड इन नंबर ऑफ द वर्ल्ड्स MPAs, मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया में नंबर ऑफ जो है उनमें ये डेजिग्नेट किया जाता है नो टेक जोन्स, वेयर ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन आर प्रोहिबिटेड। किसी भी तरीके का वहां पे जो एक्सप्लॉयटेशन है, जो मछली पकड़ना और सब, ये सब प्रोहिबिट कर दिया जाता है। और ये ह्यूमन एक्टिविटीज को सीवियरली लिमिट्स करता है, उसको लिमिट में कर देता है। तो दिस नो टेक जोन्स आर कैन कवर एंटायर MPA और स्पेसिफिक पोर्शन। तो नो टेक जोन्स कुल मिला के MPA में है, जहां पे ह्यूमन एक्टिविटी को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो है, ये यूनेस्को का प्रोग्राम है, इसको याद रखना है। इट इज अ बैलेंस रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड बायोस्फीयर, ये इसको प्रमोट करता है। लिस्ट ऑफ मैरीन प्रोटेक्टेड एरियाज इन पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया में मैरीन प्रोटेक्टेड एरियाज कौन कौन से हैं आपको देखना है, दिमाग में अपने रखिए इसको। तो कदालुंडी, वली कुन्नू, ये केरला में है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, 2077 में हुआ है। मालवन मैरीन, ये न्यूज में आता अक्सर रहता था, इसको दिमाग में रखते हैं। महाराष्ट्र में है, एक सेंचुरी है मालवन मैरीन सेंचुरी। यहाँ पे आपको बता दूं मैं, सबसे बड़ा अभी इंडिया का बहुत बड़ा कोरल रीफ का एक एरिया पाया गया है मलवन कोस्ट पे। एंड दिस इज थाने ग्रीक फ्लेमिंगो, इसको याद रखना जरूरी है बिकॉज 2015 में इसको महाराष्ट्र में है ये सेंचुरी, ये इसको MPA डिक्लेयर किया गया है, मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया थाने ग्रीक फ्लेमिंगो को। भितरकनिका आपको पता होगा 1998 में इसको डिक्लेयर किया, नॉट सो इम्पोर्टेंट। चिल्का इंपॉर्टेंट हमेशा रहता है, उड़ीसा में है ये। गहिरमाथा उड़ीसा में है ये। बालूखंड कोणार्क में है, उड़ीसा में ही है ये। गल्फ ऑफ मन्नार आपको शायद पता हो, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट नेशनल पार्क भी है। पॉइंट कैलीमर आपको पता होगा, तमिलनाडु में भी नेशनल पार्क है और सेंचुरी भी है। पुलिकट लेक तमिलनाडु में है, सेंचुरी है। सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है और वेस्ट सुंदरबंस वेस्ट बंगाल में ही है। ये 2013 में बनाया गया, तो ये और 2015 का ये थाने ग्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी इंपॉर्टेंट है। नॉर्वे फर्स्ट कंट्री टू बैन डिफॉल्ट, नॉर्वे जो है ये फर्स्ट कंट्री बन गया है जिसने बैन कर दिया है डिफॉरेस्टेशन पे। बस इसमें एक पॉइंट आपको याद रखना है बस। उदयपुर डिक्लेरेशन किस पे था, डिजास्टर मैनेजमेंट पे था। अब आपको पता होना चाहिए कि ब्रिक्स मिनिस्टर्स की मीटिंग में ये डिक्लेयर किया गया। उदयपुर डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है। 2016 में आया है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2016 में पहली मीटिंग इसकी हुई थी सेंट पीटर्सबर्ग में, भी दूसरी मीटिंग इसकी हुई है यहाँ पे। तो उदयपुर डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है, इसको आपको याद रखना है। 10 सैटेलाइट चाइना ने छोड़ा है, आपको पता होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को, ग्लोबल एमिशन को मॉनिटर करने के लिए इसे छोड़ा गया। दिस इज थर्ड कंट्री आफ्टर जापान एंड यूनाइटेड स्टेट। पॉइंट नंबर 1, 10 सैट किसने छोड़ा, दूसरा किसके लिए छोड़ा गया, तीसरा है, तीसरा स्टेट है जापान यूनाइटेड स्टेट्स। इसके अलावा आप इस पे कुछ नहीं याद रखना है। So now let's start the questions again. Which country has become the first country in the world to ban deforestation? Norway. Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources is headquartered in Australia, Tasmania, Australia. Third, Udaipur Declaration was for disaster risk management. Which of the following is correct regarding the Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources? Ross Sea in Antarctica was declared the world's largest marine protected area. बिल्कुल सही। MPA status to Ross Sea will bring blanket ban on commercial fishing in about 3/4 of area for 35 years तक। 35 साल के लिए 3/4 एरिया पे बैन लगा दिया गया, बिल्कुल सही, दोनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन इज द लेटेस्ट डिक्लेयर मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया इन इंडिया? आपको पता होना चाहिए 2015 में थाने क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी को डिक्लेयर किया गया मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया। Recently, no take zones were in news. It is related to marine protected area. Marine biosphere is a program of UNESCO. Thank you very much for watching this video, and please subscribe for complete current affairs preparation for preliminary 2017. And please visit www.stepapies.com for free test series.
सो वी नीड प्रैक्टिस प्लस रिवीजन इक्वल टू सक्सेस। आप रिवीजन पे नोट्स कीजिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कीजिए और सक्सेस पाइए। थैंक यू वेरी मच। वी विल बी मीटिंग सून विद माय नेक्स्ट वीडियो ऑन एनवायरनमेंट। थैंक यू।